प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे एक और एपिसोड फेस टू फेस विद फ्रांसिस। इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम भारत में और अनेक जगहों में से जो मसीहत के लिए काफ़ी बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हाईलाइट करते हैं, ऑथर्स हैं, ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ हैं, वो आपके सामने इस शो के माध्यम से हम लाते हैं। आज इस शो में एक बहुत ही खास मेहमान, स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और आपको बहुत खुशी होगी उनको देखकर, उनके बातों को सुनकर, और उनके बारे में जानेंगे ज़रूर। उनका नाम है डॉक्टर बाबू वर्गीस। जी हाँ, आप सभी लोग कई बार सुने रहेंगे। डॉक्टर बाबू वर्गीस की एक बेहतरीन किताब है लेट देयर बी इंडिया। जी हाँ, आज हमारे वो स्पेशल गेस्ट हैं। कौन है डॉक्टर बाबू वर्गीस? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगा। डॉक्टर बाबू वर्गीस, उनका पूरा नाम है डॉक्टर बाबू करीमकुट्टिकल वर्गीस। वो एक जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कंसल्टेंट और हिस्टोरियन भी हैं। उन्होंने लगभग 10 से भी ज़्यादा किताबों को लिखी हैं और लिख रहे हैं, और मुझे खुशी हुई ये जानकर कि लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने काफ़ी सारे किताबों को लिखा है और लिखते जा रहे हैं। और डॉक्टर बाबू वर्गीस की खासियत ये है कि उनकी डॉक्टरल थीसिस है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी कि भारतीय भाषाओं का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर डॉक्टरल थीसिस है। लिटरेचर के ऊपर भी किया उन्होंने, लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषाएं, एजुकेशन, प्रिंटिंग, जर्नलिज्म और कल्चर। डॉक्टर बाबू वर्गीस जो हैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर के नाम से भी माने जाते हैं और उन्होंने बहुत से देशों में, लगभग 25 से भी ज़्यादा देशों में उन्होंने स्पीच दिया है, बातें किया है। आज उन्हीं के साथ हम बातचीत करेंगे और उनका एक बेहतरीन किताब, जिस किताब ने मेरे दिल को छू लिया, उस किताब ने मेरे सोच को बदल दिया, और वो किताब आपके सोच को भी बदल सकता है। भारत के लिए हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज, मसीहों ने क्या किया है, ये काफ़ी सारे लोग इस वीडियो के माध्यम से किताब से जान पाएंगे। उनको इनवाइट करने से पहले छोटा सा एक ओवरव्यू उनके किताब के बारे में हम इस वीडियो क्लिप में देखेंगे। देखिए और बने रहिए। हम तब तक डॉक्टर बाबू वर्गीस को हमारे साथ इनवाइट करेंगे। Say hello to the vada pav, a snack to some, a meal for others. Well, who brought the pav or pav to India? Did you know that it was the Christian servants and Bible translators? Pav is bread, and the vada's content, patata or potato, was brought by them too. So were tomatoes, chilies, cashew nuts, apples, groundnuts, oranges, pineapples. Care for a cappuccino? Again, Christian servants popularized the drink in our country. India is incredible, a fast-growing modern nation. But how did we reach this eminence? Who were the pioneers, the movers and builders of modern India? What about languages? Who developed our mother tongues? Who gave modern scripts, grammar books, dictionaries, prose, literature, novels, drama, travelogues, textbooks? The credit goes to Bible translators. Take William Carey for instance. He lived in Serampore for 42 years, developed 41 Indian languages, and gave India 23 new progressive products and services. Between 150 and 200 years ago, these Bible people produced 85 dictionaries, 116 grammar books, and 45 newspapers. They established the first printing press in Goa in 1556. The first vernacular newspapers were launched at Serampore in 1818. What about modern education? Who established schools, colleges? Serampore University was founded in 1818 by Carey and fellow servants. The universities of Mumbai and Madras, started in 1857, were also through their pioneering efforts. They also gave our country institutes for agriculture and horticulture, the first science lab, library, paper-making factory, font-making facility, bank, bakery. The list goes on. What about contributions to social transformation? The early Christian workers started institutes and care centers for the deaf, dumb and blind. They established the first leprosarium, orphanages and homes for the destitute. They pioneered modern hospitals, healthcare, health education and medical colleges. They launched revolutionary movements to abolish sati, infanticide and human sacrifices. They questioned caste divisions and insisted that all human beings are born equal and have to be treated equal. They enlightened, educated, and empowered the marginalized, downtrodden, and outcasts. This is history. Their sacrifices to build modern India are to be etched in golden letters. In his investigative research and in the book,
Let There Be India. Impact of the Bible on Nation Building. Dr. Babu K. Varghese has documented the irrefutable contribution of these Christian servants and Bible translators to make India a great modern nation. This authoritative and authentic study will enlighten and empower you. It will arm you with a wealth of historic information and strengthen you to boldly face the current challenges while you enjoy your Vada Pav, of course. तो स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल एपिसोड में। आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि मैं काफ़ी खुश हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बाबू वर्गीस। थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबू वर्गीस फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। हमारे इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बाबू वर्गीस, इन दिस एपिसोड सिंस देयर आर लॉट ऑफ हिंदी स्पीकर्स, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी ट्रांसलेटिंग योर इंग्लिश स्पीच इनटू हिंदी रियल टाइम। वेलकम। सो डॉक्टर बाबू वर्गीस जो हैं वो इंग्लिश में बात करने जा रहे हैं और मैं उसको तुरंत जो है हिंदी में भाषांतरण यानी कि ट्रांसलेशन अनुवाद करने की मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। वी विल प्रोसीड। आई विल बी आस्किंग माय क्वेश्चंस इन हिंदी एंड the response will be provided in English as well as in Hindi translation. So Dr. Babu Varghese, once again I'm so thankful that you are here. मुझे बहुत खुशी है आप यहाँ पर हैं। कुछ सवालों को मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी किताब के बारे में। आपने रिसर्च किया है ये दावा करते हुए कि बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है, जो भारत का नवनिर्माण जो किया है या फिर नयाकरण किया है, आपकी किताब में आप क्लेम करते हैं कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज और बाइबल पीपल ने किया है और आपने कहा कि उनके द्वारा ही जो है भारत जो है मॉडर्नाइज हुआ है। तो आपने ऐसा क्या रिसर्च किया है और ऐसा क्या है आपके इस किताब लेट देयर बी इंडिया में? You have claimed in your book that the Christian missionaries or Bible people have modernized India. So what made you do this research specially, and what is this published book Let There Be India all about? First of all, namaskar to everyone. I'm so delighted to be on Face to Face with Francis Talk. Thank you so much. We are going to have a very pertinent, very crucial current affair discussing. There are two issues that we are discussing nationally today. आज जो है हम बहुत ही विशेष मुद्दे के ऊपर जो है बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर और मुझे खुशी है कि फेस टू फेस फ्रांसिस प्रोग्राम में मैं आया हूँ और आज दो मुख्य हम राष्ट्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, नेशनल इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। Everyone is talking about nationalism and nation building. हर कोई जो है राष्ट्रवाद और राष्ट्र को बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है। Who is a nationalist? I am not going to talk on that. We are all nationalists. We all are delighted to be citizens of this country. ये राष्ट्रवाद कौन है मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा कि हमें गर्व है, हम सब राष्ट्रवाद हैं। So I don't want to come into discussion of that issue. और मैं उस मुद्दे पर मैं बात नहीं करने जा रहा हूं। The second issue is nation building. Who built India? दूसरा जो मुद्दा है भारत को बनाने वाले, यानी कि भारत को किसने बनाया। I'm so delighted that I am an Indian. मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं एक भारतीय हूं। But where are we Indians? Where did we come from? लेकिन हम भारतीय कहां से आए? That's a major issue. ये बहुत बड़ा मुद्दा है। Of late, some people say Indians were already here and Indians have gone out of India to foreign countries. कुछ लोग कहते हैं कि पहले से भारतीय लोग यहाँ पर थे और कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय लोग बाहर गए थे फॉरेन कंट्रीज में। But historically, it is said that we all Indians came from foreign countries. और ऐतिहासिक रूप में ये माना जाता है कि सारे भारतीय जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आए हैं। Traditionally, it is believed and archaeologically, anthropologically, it is said that we all are from foreign countries. और आर्कियोलॉजी के आधार पर, ट्रेडिशन, पुरातत्व शास्त्र के आधार पर जब हम देखते हैं तो ये सही साबित हो जाता है कि हम सारे फॉरेनर्स हैं। People like Rajiv Malhotra is trying to change the traditional view. और कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजीव मल्होत्रा, वो क्या कर रहे हैं, ये सोच को जो ट्रेडिशनल है उसको बदलना चाहते हैं। Where did we come from? हम आए कहां से? See, there's only one history book which is reliable in this world. देखिए एक ही ऐतिहासिक किताब ये दुनिया में है जो रिलायबल है। That book is known as the Bible. और वो किताब एकमात्र बाइबल है। So you may think, oh, this is a foreign religious book.
आप ये सोच सकते हैं कि ये किताब जो है वो विदेशी किताब है और धार्मिक किताब है विदेशों का। Bible is not a Christian religious book. बाइबल जो है एक क्रिश्चियन धार्मिक किताब नहीं है। According to the Bible, God created each one of us. बाइबल के आधार पर परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। And when God created us, He gave us an operation manual known as the Bible. और परमेश्वर ने हमको बनाकर एक मैनुअल हमारे हाथ में दिया है जिसका नाम बाइबल है। So this manual is for everyone to read and understand. Where did we come from? Where are we going? तो ये बाइबल जो मैनुअल है वो सभी के लिए है। उसमें हम पढ़ते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। So Bible is a book of history of the world, past, present and future. तो बाइबल एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जो दुनिया का भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बात करता है। So this is the most reliable book in the world regarding the history of the world. अगर इतिहास के मामले में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा भरोसामंद किताब यही है। It will give you the details of where did we come from, why are we here, where are we going. और ये आपको सफाई से बता सकता है कि हम कहां से आए थे और कहां जा रहे हैं। Don't you need to know this morning? क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं आज Yes. सुबह? Now listen to this. आप इसको ध्यान से सुनिएगा। According to the Bible, बाइबल के अनुसार, especially from chapter 1 to chapter 12 of Genesis, the first book, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय से लेकर विशेष कर 12वां अध्याय तक, in the beginning God created us. शुरुआत में आदि में परमेश्वर ने हमको सृष्टि की। Here He created the heavens and the earth, and ultimately He created mankind. परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, फिर मनुष्य को बनाया। But we had fellowship with God. हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे। We had communion with God. We communicated with God. हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे। Our first people, known as Adam and Eve, had continuous fellowship with God in the Garden of Eden. हमारे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, आदम और हवा लगातार परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे उस बगीचे में। But unfortunately, because of disobedience, that communion and communication we lost sight of. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय में उनके आज्ञा के उल्लंघन के कारण परमेश्वर के साथ जो बातचीत थी, रिश्ता थी, वो सब खो गए। That is known as sin. और उसको हम पाप कहते हैं। Sin is defined as losing the presence and proximity with God. पाप का जो परिभाषा है उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की नजदीकी को जब हम खोते हैं, वो उसका अर्थ है। So that God still loves us. वो परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। He sent His Son Jesus Christ उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह को to भेजा restore that relationship with God. ताकि परमेश्वर के साथ वो रिश्ता को फिर से जोड़े। Jesus Christ died for us and He was buried and He rose again on the third day. यीशु मसीह हमारे लिए मरा, दफनाया गया और तीसरे दिन दोबारा जी उठा। You know, God created us to rule this world. आप जानते हो परमेश्वर ने हमको ये दुनिया में राज करने के लिए बनाया। Genesis chapter 1 verse 28 says, "You shall rule the world." Adam and Eve and their humanity, you will rule the world and all that is formed in this world. और उत्पत्ति की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि आदम और हवा इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे और जो भी इस दुनिया में उस पर राज करेंगे। Because of disobedience, we lost the right to rule this world. लेकिन आज्ञा के उल्लंघन के कारण वो अधिकार जो है दुनिया पे राज करने का, वो हम खो चुके हैं। But God, being a loving God, sent His Son so that we will get back the right to rule this world. लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि उस पुत्र के द्वारा हम उस अधिकार को दोबारा पाएं इस दुनिया पे राज करने का। Now, as I said, Jesus Christ died, rose again, and He went to heaven. जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, दफनाया गया, पुनरुत्थान हुआ और वो स्वर्ग चले गए। And He's going to come back. और वो दोबारा आने वाले हैं। And then, for 1000 years, Jesus Christ is going to rule the world along with all those who believe in Him. और यीशु मसीह जब दोबारा लौटेंगे, वो 1000 साल तक जो है यीशु के ऊपर जिसने भरोसा किया उनके साथ मिलकर राज करने जा रहे हैं। So where did we come from? तो हम कहां से आए? We came from us created by God. हम आए हुए हैं खुदा के सृष्टि के द्वारा। Yes, we were created. The first man and woman was created and they were set in the Garden of Eden. और पहला मनुष्य, पुरुष और स्त्री सृष्टि किया गया और आदन के बगीचे में रखे गए। Garden of Eden is in eastern Turkey. और वो उसको जो है ईस्टर्न टर्की के नाम से जाना जाता है। And God, because they sinned, drove them out of the Garden of Eden. और उन्होंने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने जो उनको एडन गार्डन से बाहर निकाल Then दिया। God said, "You come on, you live the way you want." और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मर्जी से जी लो। But according to the Bible, what happened? लेकिन बाइबल के अनुसार क्या हुआ? People continue to live in sin.
लोग पाप में लगातार जीने लगे। Therefore, God had to send the great flood onto the earth, and the entire humanity were wiped out. इसलिए परमेश्वर को जो है बहुत बड़े बाढ़ को जो है दुनिया में भेजना पड़ा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को जो है उस बाढ़ ने साफ कर दिया। But God found one family of Noah as the righteous people. लेकिन परमेश्वर ने नूह का एक परिवार को धर्मी के रूप में देखा। Noah and his wife and 3 children known as Shem, Ham and Japheth. और नूह और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे जिनका नाम है शेम, हैम और जाफेत, They survived and they settled in eastern Turkey under the valley of Ararat mountain. और ईस्टर्न टर्की में जो है वो अरारत पर्वत के नीचे जो है वो सेटल हुए हैं उस बाढ़ के बाद बचकर। This is where the history comes alive. और यहाँ से इतिहास जिंदा होता है। So that small agrarian civilization, और वो जो छोटा सा सिविलाइजेशन from था, that small family of 8, the entire humanity has come out. और वो छोटे फैमिली से जो है पूरा मानव जाति फिर से उत्पन्न So हुआ। according to the Bible, chapter 11 and 10 of Genesis, और बाइबल के उत्पत्ति के किताब 11 और 10वां अध्याय के people अनुसार, began, the sons and daughters of Shem and Ham Japheth, और शैम, हैम, याफेत के बेटे बेटियां, they slowly began to move around Euphrates, Tigris and other places. और यूफ्रेटिस, टाइग्रिस ऐसे एक एक जगहों में वो धीरे धीरे जो है फैलने लग गए। In chapter 11 and 10 of Genesis, we have all the details of the first movement of the people around the world. और उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 11वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लोगों का पहली बार जो है अलग अलग जगहों में चलना फिरना, मूव होना वो हमको दिखाई देता है। Maybe I will take another session exclusively for और that. इसके लिए मैं एक अलग से सेशन लेना चाहता हूँ। Let me come back to India then. अभी मैं भारत के बारे में फिर से बात करता हूँ। Now, from Shem, Ham and Japheth, शेम, हैम, याफेत से people began to move to Asia, Africa and other countries. और लोग जो हैं एशिया, अफ्रीका और दूसरे देशों की तरफ वो प्रस्थान करने लगे। So it is believed in around BC 2500, और ऐसा माना जाता है मसीह के पहले लगभग 2500 साल पहले a group of people, again children of Shem and Japheth, known as Mediterraneans or Dravidians, moved and came to Sindhu river area. और मेडिटेरियन, They came to the Mediterranean, people known as Mediterraneans, और जो लोग मेडिटेरेनियन के नाम से जाने गए थे or they are known as Dravidians. और वो या फिर द्रविडियन के नाम से जाने They जाते traveled from eastern Turkey over the years and came to Sindhu river area. और वो ईस्टर्न टर्की से जो है यात्रा करके सिंधु नदी के तरफ वो आए। People who live in that area, they are known as the Sindhustanis or Hindustanis. और वो नदी के किनारे में जो लोग रहते थे वो उनको सिंधु या फिर सिंधुस्तानी के नाम से Sindhu, जाना जाता था। it's a Persian word. और सिंधु जो है एक पर्शियन Persians could not use the word, say the word sa, they say ha, they said Hindu Desh. और पर्शियन लोग जो थे उस समय के वो स शब्द को इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए स के जगह पे ह कहकर हिंदुस्तान और हिंदू कहने So लगे। Hindustan or Sindhustan has nothing to do with Hindu religion. It's only about the people who live around the Sindhu river. तो सिंधुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों की पहचान है जो सिंधु नदी के किनारे रहा करते। So near the Sindhu river, first BC 2500, Mediterraneans came. और वो सिंधु नदी के आसपास जो है 2500 साल पहले मेडिटेरेनियन के लोग जो हैं वो आए थे। BC 1500, another group known as Aryas came. और लगभग मसीह के 1500 साल पहले एक और ग्रुप के लोग आए थे आर्या के नाम। The Aryas and the Dravidians they mixed up and they got married to one another. और ये आर्यंस और द्रविडियंस जो है वो मिक्स हो गए, आपस में शादी ब्याह करने लगे। They are not known as Indo-Aryans. और उनको इस नाम से जाना जाता है इंडो आर्यन। And again, more than 20 other tribal groups came to India. और उसके बाद फिर और 20 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो भारत में आए। So Indians are a potpourri of foreigners. और भारत के बारे में अगर हम बात करें, ये सभी भारतीय विदेश के एक झुंड हैं कह सकते So हैं। we are all cousins. तो हम एक दूसरे के कजिन हैं। From me onwards to Prime Minister and the President, everyone in this country, 138 crores of Indians are my cousins. और ये जो भारत के 138 करोड़ लोग हैं जिसमें प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कोई भी, हम सब जो हैं कजिन्स हैं। We are all children, grandchildren of Shem, Ham and Japheth. हम सब जो हैं पोते पोतिए हैं शेम, हैम, जाफेत के। So we don't need to worry about you are a foreigner, I'm a foreigner, I'm a nationalist. Unwanted. Let us stop all this nonsense. और हमको जो है इस बात को लेकर बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि तुम भारतीय हो, तुम भारत के हो, तुम राष्ट्रवादी हो, तुम विदेशी हो। ये सारे चिंता को हमको बकवास को रोक देना चाहिए।
क्या इसको हम साइंटिफिक आधार पर साबित कर सकते हैं? Tell me, 500 years ago, where is things written? There are no history written 1000, 2000 years ago as such, right? और 1000-2000 साल के पहले हम बात करते हैं तो इतिहास कहां पर लिखा है? Rather, the only reliable historical book is Bible. अगर इस मुद्दे पे देखा जाएगा तो बाइबल ही एकमात्र जो है भरोसेमंद एक किताब। This Genesis book, Genesis, is written in BC 1500. और ये जो जेनेसिस जो है उत्पत्ति की किताब मसीह के लगभग 1500 साल पहले लिखे गए हैं। That means we have a story written around for 3500 rupees, 3500 years. और तो हमारे पास जो घटना लिखी गई है वो लगभग 3500 साल के दरमियान के बारे में लिखी गई And it's a reliable story. और वो भरोसेमंद कहानी है। It is up to you to accept it or not. अगर अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं। See, whether you accept sun as alive, sun is giving you light or not, sun will continue to shine, right? आप ये बात मानो या ना मानो कि सूरज आपको रोशनी देती है नहीं देती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रोशनी देते रहेंगे। Therefore, it's immaterial whether you believe in the Bible or not. आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बाइबल पे भरोसा करो या ना करो। But if you believe it, you will be more satisfied to know the real history of the world. अगर आप उस पे भरोसा करेंगे तो आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे इस दुनिया के इतिहास को समझने So first thing is I want to ask people like to tell people like Rajiv Malhotra that we are all foreigners. तो ये पहले इस बात को मैं जो है राजीव मल्होत्रा जैसे लोगों को बताना चाहता हूं कि हम सब जो है विदेशी हैं। But we created a nation of India. हमने मिलकर जो है भारत नाम के एक देश को बनाया। But there is no, do you know another truth? क्या आप एक और सत्य को जानते हैं? That there was no India at all till 1947. 1947 तक तो भारत नाम की कोई चीज भी नहीं थी। India was created by whom? भारत को किसने बनाया? By the Britishers. ब्रिटिशर्स ने बनाया। We have to be thankful to them. हमको उनको धन्यवाद तो कहना चाहिए। I may not agree with everything what Britishers have done. They have come and looted this nation. जो ब्रिटिश लोगों ने किया है मैं उनके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं और ये बात को मैं सच मानता हूं कि उन्होंने हमको लूटा जरूर। In India there were more than 560 local feudal leaders and kings and princes. That's और all. भारत में इतिहास के आधार पर हम देखते हैं 560 से भी ज्यादा जो है लोकल लीडर्स, राजाएं, मंत्रियां ऐसे झुंड में थे हर एक राज्य में। So in the preamble of our constitution of 1947, हमारा जो प्रियम्बल है 1947 कॉन्स्टिट्यूशन का, it is written there that India is created out of 560 over 560 local native provinces. और उस संविधान के उस प्रियम्बल में साफ लिखा है कि भारत को जो है 560 के लगभग जो लोकल राज्य प्रदेश जो ग्रुप्स हैं उसको साथ में मिलाकर बनाया So गया है। as we call, I am an Indian. Actually, it is 1947 onwards only. अब जब हम कहते हैं कि मैं भारतीय हूं तो वो 1947 से ही है। Yeah, otherwise we were local native people. That's all. लेकिन उसके पहले देखा जाए तो हम सब लोकल यहाँ वहां छोटे छोटे राज्य के लोग। So it's all claiming that I am 5,000 years old, 4,000 years old. It's all unwanted claims. और ये जो लोग दावा करते हैं कि 5000 साल पुराना, 4000 साल पुराना, ये सारी बेबुनियाद बातें। We never had one culture at all. We are different culture. हमारा एक संस्कृति नहीं थी, अनेक संस्कृतियां थी। Pluralism is the essence of India. और जो प्लूरलिज्म है यानी कि सब चीज को स्वीकार करने वाला बहुतायत, ये भारत का एक आम बात था। Shakespeare said, variety is the spice of life. और शेक्सपियर कहते हैं वैरायटी जो है हमारी जिंदगी का स्वाद है। You know, India is a nation of beautiful variety. और भारत जो है एक बहुत ही सुंदर वैरायटी का एक देश है। What a unity, ekta, unity in diversity. और ये जो अनेकता में एकता वाली ये जो ब्यूटीफुल बात है, Color and culture and language and, you know, dress and food, what not. रंग, कपड़े, खाना और कितनी बातें हैं, But one people, लेकिन एक one nation. एक देश। We are all nationalists. We all love this nation. हम सब राष्ट्रवाद हैं और हम सब इस देश से प्यार करते You know the greatness of this nation? हैं। आप जानते हो इस देश की बड़ी बात क्या है? We always receive the good things from all other countries. हमारी महानता यही है कि हम बहुत सारे देशों से अच्छे अच्छे चीजों को हमने लिया है। Apart from you know all these Dravidian and Aryan races, और ये जो द्रविडियन और आर्यन रेसेस के अलावा another major people came known as the Jews. No, the Israelites, the Jews. और दूसरे झुंड के भी लोग आए थे जो यहूदी थे या फिर इस्राएली थे। You know, from BC 900, BC 1000 onwards, a lot of Jews came to India. और मसीह के Jews, BC 1500. और 1000, BC 1000.
और BC यानी कि मसीह के लगभग 1000 साल पहले से ये जो है यहूदी ग्रुप भी जो है आना शुरू कर दिया। What a right, you know, the Jew contribution of Jews to India is amazing. और यहूदियों का जो योगदान है वो भी बहुत बड़ा है भारत। What I'm trying to say that we are a beautiful nation of pluralism. और मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो पूरा देश जो है, हम सभी लोग जो है प्लूरलिज्म के एकता वाले लोग हैं। And again, according to our constitution, Article 25, और हमारे संविधान के आर्टिकल 25 के अनुसार we have every right to profess और हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम अंगीकार करें and practice and propagate any faith you want to और believe. हम उसका पालन करें और बढ़ाएं जो भी धर्म हमें पसंद है। That's the beauty of India. और ये भारत की महानता है। Any kind of ideology we have received. और जो भी मुद्दा है, जो भी आइडियोलॉजी हमने स्वीकार किया है, The good things we have accepted and we have rejected the bad things. हमने अच्छी चीजों को स्वीकार किया और बुरे चीजों को रिजेक्ट That किया is the है। greatness of India. और वही महानता है। We love one another. हम एक दूसरे से प्यार We care for one हम another. एक दूसरे का कद्र करते हैं This is India. और ये भारत है। Now, अभी I come back to my question, Francis. और जो फ्रांसिस ने सवाल पूछा उसमें मैं आता हूँ, Why I wrote this book, Let There Be India? क्यों मैंने ये किताब भारत बने रहे ये A लिखा? few years ago, कुछ साल पहले one of our ministers in the central government सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने made a comment like this, एक स्टेटमेंट कमेंट उन्होंने कहा, that the Christian missionaries destroyed the culture of India. क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत के संस्कृति को बर्बाद कर दिया। And he said that in Hindi language. और उन्होंने इसको हिंदी में कहा। See, I'm a Bible believer. देखिए, मैं बाइबल को मानने वाला व्यक्ति I'm also a historian and a journalist. मैं एक जर्नलिस्ट और एक हिस्टोरियन भी हूँ। When I listened to that statement, जब उस स्टेटमेंट को मैंने सुना I thought, that's not the right statement. तो मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। So I thought that I will do a study, a research on the development of India and the contribution of Bible people to India. तो मैंने अपने रिसर्च को शुरू किया किस आधार पर कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या क्या योगदान किया है। To begin with, that minister spoke in Hindi language. शुरू करने के लिए वो मंत्री ने हिंदी भाषा में बात की He's an expert in Hindi language. और वो एक्सपर्ट हैं हिंदी But भाषा I में। knew one thing. लेकिन मैं एक बात जानता था, Hindi as a language was developed by Bible people in this और country. हिंदी जो भाषा है उसको भी जो है बाइबल पीपल ने जो है भारत में उसको बनाया। So I launched into a research with the Nagpur University in Maharashtra. और महाराष्ट्र के नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ जो है मैंने एक अपना रिसर्च शुरू किया। I started my research in the translation department of linguistics in Nagpur University. और नागपुर यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन के उस डिपार्टमेंट में मैंने अपना रिसर्च शुरू किया। I did a 5-year study. और मैंने वहां पर 5 साल का स्टडी किया। God gave me opportunity to go to Oxford University and various other over 30 countries to collect irrefutable data on how the languages of India were developed. और प्रभु की कृपा से प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ 30 से भी अनेक देशों में मुझे जाने का मौका मिला ताकि मैं वैसे डेटा को बनाऊं जो कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता और बहुत ही जबरदस्त बयान को लेकर आऊं। According to the census, we have 1,652 languages in India. अगर हम सेंसस के आधार पे बात करते हैं, how much is that? 1,652. 1652 भाषाएं भारत में हैं। Out of that, we have modern script only in 220 languages. और लगभग 220 भाषाओं का ही जो है मॉडर्नाइज स्क्रिप्ट है। So I began to do a research तो मैंने एक रिसर्च शुरू किया on various parameters. बहुत सारे पैरामीटर्स के आधार पर मैंने रिसर्च Number शुरू one, किया। पहला, who developed modern script? किसने नए लिपियों को बनाया। So as a sample, I looked at 125 languages of India. और सैंपल के लिए जो है भारत के लगभग 125 भाषाओं को मैंने लिया। We have script only in 220 languages. हमारे पास लिपि और स्क्रिप्ट जो है लगभग 220 भाषाओं So की है। who modernized the script? और ये लिपियों को, स्क्रिप्ट को मॉडर्नाइज या नवीनीकरण के, Who gave us a grammar book, grammar analysis? ग्रामर यानी कि व्याकरण का एनालिसिस हमको किसने दिया। Who gave multilingual dictionaries? मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी हमको किसने दिया। And who gave us literature and prose? लिटरेचर और ये सारे बातें हमको किसने दिया। You see, like novel, drama, and travelogue, other literature, who gave us? नॉवल, नाटक यानी कि नाटकांतन रूप जो नाटकीय कार्य होते हैं और ट्रैवल, ये सारे किसने हमें दिए। Then who developed literacy, like
like schools and colleges and universities. और जो लिटरेसी के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये किसने दिया? Then who gave, textbooks in our schools and colleges? हमारे स्कूलों में और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक किसने दिया? Who started the printing press in India? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया? Who started newspapers and magazines and books in India? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, ये भारत में किसने शुरू किया? And how long it has been developed? और वो कितना समय से ये डेवलप हुआ है? And what is the socio-economic impact of these things? और सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव क्या भारत में पड़ा है इससे? So I did a research on this. और इसके ऊपर जो है मैंने रिसर्च किया। My thesis of 850 pages. और मेरा जो थीसिस था लगभग 850 पन्नों का। It was submitted to the Nagpur University. और वो जो थीसिस को जो है नागपुर यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया। 6 professors evaluated it. 6 प्रोफेसरों ने उसको परखा। And later on they awarded a PhD to me. और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे PhD प्रदान किया, अवार्ड किया। That has become a must read for MA and PhD linguistics in the universities today. और आज यूनिवर्सिटीज में MA जो लिंग्विस्टिक्स करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी पढ़ने वाला एक रिसोर्स जैसे बन गया। Later I turned this, based on that I made a book known as this one, Let There Be India, The Impact of Bible on Nation Building. और उसी के आधार पर मैंने उसके बाद एक नए किताब को लेकर आया आपके सामने, लेट देयर बी इंडिया, बाइबल के आधार पर भारत को बनाने का क्या प्रभाव पड़ा है। Here you have the details about how in India one group of people developed Indian languages. और यहाँ पर आपको जानकारी और सबूत है कि एक झुंड के लोगों ने किस प्रकार भारत को नवीनीकरण किया और भारत को बनाया। This is what I found out. और यही मैंने पाया। Maybe a very strange statement I am giving you. हो सकता है कि मैं आपको एक विचित्र बयान देने जा रहा हूं। All these languages were developed by one group of people known as Bible people. और ये सारे भाषाओं को एक विशेष झुंड के लोगों ने बनाया है जिनको मैं बाइबल पीपल या फिर बाइबल के लोग कहते Or हैं। you can call them Christian missionaries. या फिर आप उनको क्रिश्चियन मिशनरीज कह सकते हैं। Some of our people today don't like the word missionary. बहुत सारे आज लोग जो हैं वो मिशनरी वो शब्द को पसंद नहीं करते। But what do you mean by missionary? लेकिन मिशनरी का मतलब क्या है? It is somebody who has a mission. मिशनरी का मतलब सिर्फ यही है कि उसके पास एक मकसद है, Yes, मिशन है। there are people with mission and action. और वो लोग जिनके पास एक मकसद है, एक दर्शन है और वो काम करते हैं। They have a mission to develop a society. और उनके पास एक मकसद, मिशन है कि वो सोसाइटी को बनाए। Yeah, bring a society, develop a society of peace, harmony and prosperity. और एक ऐसे सोसाइटी को बनाए जहां पर शांति हो, समाधान हो और प्रॉस्पेरिटी हो। So thousands of years ago, these Bible people came from overseas and they landed in India. और 1000 साल पहले लगभग भारत में जो है बाइबल पीपल जो है विदेश से भारत में आए। So I have found out that these Bible people, they came, they lived among the people, they learned the language and developed it into grammar book and other things. और ये मैंने जाना है कि ये जो बाइबल लोग हैं, बाइबल पीपल हैं, वो भारत में आकर भारत के लोगों के साथ रहकर बातचीत करके उनके भाषाओं को सीखकर फिर उसके बाद ये भाषाओं को और व्याकरणों को उन्होंने बनाया। To sum up, I have found out that out of the 125 languages I analyzed, और लगभग 125 भाषाओं को जो मैंने पढ़कर एनालाइज किया, मैं ये निष्कर्ष में पहुंचा हूं 150 or 200 years ago, 150 से 200 साल पहले तक these Bible people produced 45 newspapers. और ये जो बाइबल लोग यानी कि बाइबल पीपल हैं 45 कम से कम समाचार पत्रों ने बनाया, 85 dictionaries, 85 डिक्शनरीज को बनाया 116 grammar books. और 116 व्याकरण के किताबें। Think of yourself now. Pause for a minute. एक सेकंड के लिए आप जरा सोच कर देखिए, Can you think of a day that you never had a book? क्या आप एक दिन के बारे में सोच सकते हैं जहां पर आपके पास किताब नहीं थी, No printing press, प्रिंटिंग प्रेस नहीं, no newspaper, न्यूज़पेपर ना no हो, school, स्कूल ना हो, no college, कॉलेज ना हो, no university. यूनिवर्सिटी ना Huh? हो। Yes, there was a time in India. हाँ, एक ऐसा समय भी था भारत में। Who developed all these things? ये सभी चीजों को किसने बनाया? Authoritatively, I tell you, it is the Bible people. और मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ I have given you. बाइबल के लोगों ने। You can take buy my book and see all the details. और आप मेरे किताब को खरीद सकते हैं और उसमें सारी जानकारी को आप देख सकते हैं। Yeah, this is all the details I have given. और पूरे सबूतों को मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। Yes,
It is approved by the universities. और ये किताब ऐसा ही नहीं लिखा गया है, बल्कि यूनिवर्सिटीज ने इसको अप्रूव किया है। Several universities nationally and internationally invite me and I talk on this subject. और भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को मानते हैं और मुझे इनवाइट करते हैं, न्योता देते हैं इसके ऊपर मैं बात करूं। Yes, it is the Bible people who created modern India. और ये बाइबल के लोग हैं, वो मॉडर्न इंडिया को बनाए हैं। You may ask me, आप मुझे पूछ सकते हो, didn't you have an agenda in that? By the Bible people have whether they had an agenda? क्या बाइबल लोगों के पास एक एजेंडा नहीं था?